Today we are going to learn a lesson from the other book, Footprints Without Feet. Lesson number 8, The Hog Driver. Book Footprints Without Feet. Lesson number 8, The Hog Driver. Hog driver means a person who drives a taxi for living. टैक्सी चला के जीवन बिताने वाला व्यक्ति को कहता है हॉग ड्राइवर। यह डायरेक्ट टैक्सी भी हो सकता है, जानवर के द्वारा चलाए जाने वाली गाड़ी भी हो सकती है। एनीवे, a person who drives a taxi for a living is called the hog driver. Okay? A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. A friendly hog driver takes him round the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkins? That we will see from the lesson. Okay, let us start the lesson. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. Clerk means लिपिक, बाबू कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs, but to serve summons. Legal practice करने के लिए नहीं, summons करने के लिए मुझे लगा है। summons किसी का केस का पेशी आ जाए, उसको ले जाके लेटर देना है और उसको हाजिर होने के लिए बस उसको बता के आना। It is the duty. I was sent not to prepare legal briefs, but to serve summons like a chief private detective. ये एक ऐसा डिटेक्टिव का रूम में काम करना पड़ता है मुझे। डिटेक्टिव मीन जासूस। ऐसे प्राइवेट डिटेक्टिव चीप है नहीं, बेकार, कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, सस्ता हम बोल देते। I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. मेरे कक्षी को बुलाने के लिए मुझे ऐसे गंदी गंदी जगह में और शेडी कॉर्नर्स में जाना पड़ता। Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. कुछ लोग मेरे साथ अन्याय भी करते, मारपीट भी करते थे। I hated this unpleasant work. And the side of city life it revealed it to me. इस तरह का शहर का जीवन मुझे अच्छा नहीं लगा। I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. इस पीरियड से बचने के लिए मैं यहाँ से भाग जाने का कोशिश भी किया कि अपने घर की तरफ, क्योंकि वहाँ जाके डायरेक्ट लॉयर का काम करें। तो अगर if you want to become a good lawyer, then you have to get a training from some expert. So you have to do that training. And after attaining all the knowledge, you can do your duty by yourself as you like. So the situation came here. I even considered fleeing bhagna to my hometown, where I could have been a real lawyer right away. वहाँ जाके एक डायरेक्ट
लॉयर का काम करूं. दिस वर्क इज़ नॉट ए गुड वन, इट्स अ डर्टी वर्क विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड. और इस तरह का ट्रेनिंग लेने से अच्छा है यहाँ से भाग जाए. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country. इसलिए मैं खुश हुआ कि बस एक बार मुझे दूर भेजा, 40 किलोमीटर दूर भेजा, to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins. एक ऐसा आदमी को समन देने के लिए, बुलावा देने के लिए और पेशी में उपस्थित होने के लिए ओलिवर लटकिंस नाम का एक आदमी को समन देने के लिए मुझे भेजा. वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस इन ए लॉ केस. हम इसको इसलिए बुला रहे क्योंकि ये विटनेस है, साक्षी है किसी केस में. एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स. जितना लेटर हमने भेजा वो सारे लेटर वो इग्नोर कर ली. When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. मैं वहाँ पहुँच गया, मैं डिसअपॉइंट हुआ, असंतुष्ट हुआ. इट्स स्ट्रीट्स वेयर रिवर्स ऑफ मड. स्ट्रीट पूरा कीचड़, विथ रोस ऑफ वुडन शॉप्स. स्ट्रीट पूरा लकड़ी का बना हुआ दुकान. एदर पेंटेड ए सावर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल. जो पेंटिंग कर रखा है वो तो बेकार, और बहुत सारे तो ऐसे खाली, no painting at all. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. बस एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि डिलीवरी मैन जो स्टेशन में मिला, he was about 40, red faced, cheerful. रेड फेस्ड का मतलब मस्त आदमी, एक्टिव, एंड थिक अबाउट द मिडिल, कमर मोटा. हिज वर्किंग क्लोथ्स वेयर डर्टी एंड वेल वॉर्न. जो काम के लिए पहन रखा है कपड़ा वो गंदा सुगला, कहीं कहीं फटा हुआ भी. एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर. लेकिन आदमी बहुत मस्त था. ही फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल. वो लोगों को पसंद करता है. लोग उसको पसंद करें या ना करें, उनको देख के लगता है वो जल्दी दूसरों को पसंद करने वालों में से. आई टोल्ड हिम टू फाइंड ए मैन नेम्ड ओलिवर लटकिंस. मैं उसके पास गया और उसे कहा, सर मैं ओलिवर लटकिंस नाम का एक आदमी से मिलने आया. लटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर. अच्छा वो, अरे अभी अभी यहीं था 1 घंटा पहले. अराउंड हियर अबाउट एन आवर, करीब करीब 1 घंटे के पहले मैंने देखा. हार्ड फेलो टू कैच दो. उससे मुलाकात करना बड़ा मुश्किल है. ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर. हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, बिजी रहते हैं. ही इज़ probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop. पोकर इधर का मतलब कार्ड, ताश खेलते हैं ना इस तरह के. फ्रिट्स नाम का कोई है, उसके शॉप के पीछे की तरफ बैठ के वो अक्सर कार्ड खेला करता है. आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस. बताऊं, मदद करूं मैं, वो कहाँ मिल सकता है. यस आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी. हाँ जल्दी मिलना है यार, वो मुझे दिन में वापस भी जाना है. एंड आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट. लेकिन एक बात बताओ, ये तो सीक्रेट काम है, हाँ पब्लिश नहीं करनी है, बस मैं उससे ढूंढने आया. आई विल टेल यू व्हाट,
बताऊं? आई हैव गोट ए हॉक, मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लटकिन्स। अगर मैं वो लेके आऊँ तो उसमें बैठ के हम दोनों घूम के उसको तलाश कर सकते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, वो जहाँ अटक जाते हैं मैं जानता हूँ। ले आऊँ क्या? ही वॉज ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विथ ये वार्म ऑफ हिज अफेक्शन। बिल्कुल मस्त आदमी, ओपन माइंडेड, फ्रेंडली। मैं तो ग्लोड हो गया, खुश हो गया उससे मिलकर। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वॉज रियल। ये तो पता है उनका धंधा है, गाड़ी ले आऊँ तो उनको किराया तो मिलेगा, तो चालाक तो है ही बस कस्टमर पकड़ने का या सवारी पकड़ने का। लेकिन उसका धंधे के पार्ट है वो। अगर कोई मतलब गाड़ी करना है तो भी सामने वाला चुप रहे तो कोई मतलब काम नहीं होता, इसलिए थोड़ा मस्ती करना पड़ता है। I was glad the fair money would go to this good fellow. मुझे पता था इनको पैसा भी देना पड़ेगा। I managed to bargain down to $2 an hour. समझौता किया, 1 घंटे में $2 बस मैक्सिमम। बारगेन किया मतलब बस किया, इसका मतलब सामने वाला ज़्यादा पूछा है, क्लियर है। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाई ए सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। फिर उसने जाके एक ब्लैक व्हील वाला गाड़ी लेके आया। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, हियर इज द गैरेज। चलो गाड़ी आ गई आपकी। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। उसका स्माइल देके मुझे ऐसा लगा कई सालों से हम दोस्ती में। द विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प ए स्ट्रेंजर। गाँव वाला मुझे अच्छा लगा, दूसरों को मदद करने के लिए तैयार रहने वाले गाँव वाले। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लटकिन्स फॉर मी। उसने मेरे को प्रॉमिस भी किया कैसा भी हम उसको ढूंढ के लाएंगे। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. देखो, आपकी बातों के बीच में आना अच्छा नहीं लगता है। शायद लटकिन्स आपको कुछ पैसा देना बाकी होगा। He never pays anybody a cent. अगर ऐसी बात है, वो तो ऐसा आदमी है तो पैसा किसी को देते ही नहीं, मतलब देने में, जो लिया हुआ पैसा वापस देने में वो थोड़ा बहुत हिचकिचाते। ही स्टिल ऑव्स मी 50 cents ऑन ए पोकर गेम। मुझे भी देना बाकी है क्योंकि हमारे जो कार्ड का गेम हुआ था उसका पैसा अभी तक मिला ही नहीं। कुछ लोग कार्ड खेलते हैं पैसा रख के, याद होगा। कुछ लोग टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए खेलते हैं, बट पीपल समटाइम यूज टू प्ले द गेम फॉर मनी। आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विथ हिम। मैं ऐसा बेवकूफ़ हूँ उसके साथ खेला। ही इज़ नॉट ओनली रियली बैड बट इट इज़ हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी। आदमी तो सही है लेकिन पैसा के मामले में तो कुछ ऐसा है। If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. अगर आप कोशिश करें उसे पैसा निकलवाने का, न जाने वो कैसा भी खिसक जाता है। If you want, I will go into Fritz and ask for him. अगर आप कहूँ तो मैं जाके वो दुकान वाले से पूछूं, उसको देखा ही क्या। एंड यू कैन कीप आउट ए साइड बिहाइंड मी। जैसे मैं पूछने जाऊँगा ना तो आप चिपके से खड़े रहना। आई लव्ड हिम फॉर दिस बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लटकिन्स। ये तो अच्छी बात है,
मैंने उसको बाई फेस देखा नहीं कभी, इसलिए जो आदमी मिला उसको तो सपोर्ट में लेना है तो बहुत ज़रूरी है। विद द हॉग ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। इनकी जानकारी से उस आदमी को मैं पहले पकड़ सकता हूँ। आई टुक हिम इनटू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused to be witness when his information would have quickly settled our case. सोचा ये आदमी को बताना ही पड़ेगा। अरे वो और उसको समन के लिए आया था, वो जितना भी लेटर देते हैं खिसक जाते हैं, आते ही नहीं, और अब की बार उसको लेके जाना ही पड़ेगा। The driver listened earnestly. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, give brother Lutkins a little surprise. हाँ भैया, उसको सरप्राइज देते हैं। Let us start. चले? तो इस तरह से फाइनल करके उसको ढूंढने निकल पड़ा। Read the lesson.